Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Friends, today we are going to study basic transportation engineering. So in this subject, we will continue with railway engineering. Today we will study about turnouts and its types. आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि टर्नआउट्स क्या होता है और उसके प्रकार क्या है. So friends, turnout is the simplest combination of points and crossing by operation of which a train is diverted to another track. मतलब कि फ्रेंड्स टर्नआउट्स पॉइंट्स और क्रॉसिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम लोग ट्रेन को दूसरी ट्रैक पे डाइवर्ट कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, a turnout may be left hand turnout or right hand turnout depending on whether the train from main track is diverted to left or right. मतलब कि फ्रेंड्स एक टर्नआउट कैसे पहचाना जाता है. अगर ट्रेन को लेफ़्ट साइड डाइवर्ट किया गया है तो वो लेफ़्ट हैंड टर्नआउट होगा और अगर राइट साइड डाइवर्ट किया गया है तो राइट हैंड टर्नआउट हो सकता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो. नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ टर्नआउट. फर्स्ट, a pair of tongue rails, then a pair of stock rails, 2 check rails, 4 lead rails, a V crossing, slide chairs, stretcher bar, a pair of heel blocks, switch type plate or gauge, part for operation points, rods, cranks, levers, etc., locking system which includes locking box, lock bar, plunger bar, etc. Now friends, let us study some of the important parts in detail. First is a pair of points or switches. In this, each pair consists of a tongue rail and a stock rail. इसमें फ्रेंड्स हर एक पैर में एक टोंग रेल होती है और एक स्टॉक रेल होती है. A tongue rail is tapered having toe at one end and heel at the other end. मतलब जो टोंग रेल है उसके वो एक एंड पे टो होता है और दूसरे एंड पे हील होता है. This is fixed to heel end to regular alignment and can be moved about this point so that in one position it leaves a gap with alignment and permits the train to go along the straight alignment. तो इसे हम हील एंड पे फिक्स करते हैं रेगुलर अलाइनमेंट के साथ और यहीं से हम इसे मूव भी कर सकते हैं कि एक पोजीशन पे एक गैप बन जाए और ट्रेन इजीली स्ट्रेट अलाइनमेंट में पास हो जाए. ट्रैक कैन थस बी डाइवर्टेड टू सम अदर ट्रैक और ट्रैक को हम अदर ट्रैक की ओर डाइवर्ट कर सके. The position of the straight alignment against which the tongue rail fits is known as the stock rail. मतलब कि जो टोंग रेल हमने स्ट्रेट अलाइनमेंट के अपोजिट में फिट की है उसे हम स्टॉक रेल कहेंगे. Now, second is a pair of stock rails. They are the main rails of the track to which the tongue rails fit closely against them. मतलब वो रेल्स के मेन रेल्स है जिसके अपोजिट में टोंग रेल्स फिट है. They are made of the rail steel and have the same dimensions as for other rails in the track. वे रेल स्टील की बनी होती है और उनके डायमेंशन भी सेम होते हैं दूसरी रेल्स की तरह. As shown in this figure, AB and PQ are the stock rails. Next is V crossing. When two rails cross each other, any one rail is given V shape so that the flange of wheel can cross the rail. मतलब कि फ्रेंड्स जब दो रेल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है तो कोई भी एक रेल को वी शेप दिया जाता है. किस लिए? ताकि जो व्हील की फ्लेंजिस है वो रेल्स को क्रॉस कर सके. एज पर द फिगर, GO इज द पॉइंट रेल while JO is the splice rail and GHIJ is our V crossing. Now friends, next is two check rails. Check rails are provided on the opposite sides of the crossing for guiding the wheel of the vehicle and thus check the tendency of the other wheel to climb over the crossing. मतलब कि फ्रेंड्स चेक रेल्स किस लिए प्रोवाइड की जाती है? वो क्रॉसिंग के अपोजिट साइड्स पे प्रोवाइड की जाती है ताकि उस पर जो व्हीकल चल रहा है उसके व्हील को गाइडेंस मिलता रहे और इस तरह से वो दूसरे व्हील की जो टेंडेंसी है क्लाइंब करने की क्रॉसिंग पे वो भी चेक कर लेती है. नेक्स्ट इज दैट 4 lead rails. In a turnout, lead rails are the length of rails from the heel of the tongue to the toe of the crossing. मतलब कि फ्रेंड्स जो हील है टंग की वहाँ से लेके क्रॉसिंग के टो तक जो टोटल लेंथ है उसे हम लेड रेल्स कहते हैं. इन दिस फिगर AT, HC, I and NP are lead rails. Next is friends studs or stops.
These are fixed between the stock rail and tongue rail. इन्हें स्टर्स या स्टॉप्स को हम कहाँ फिक्स करते हैं? स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में. These are used to prevent the lateral bending of the tongue rail and maintain correct alignment when wheels roll over the points. इसका ये फंक्शन है फ्रेंड्स कि ये जो टंग रेल का लेटरल बेंडिंग होता है इसे प्रिवेंट करता है और करेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन करता है. अभी व्हील्स पॉइंट्स के ऊपर से गुजरते हैं. नेक्स्ट इज स्विच टाई प्लेट. दिस इज प्रोवाइडेड बिलो द स्लाइड चेयर एट द टो. मतलब वो स्लाइड चेयर जो होता है टो पे वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं. These are used to hold the track rigidly to the definite gauge at the toe of switches. मतलब कि ये ट्रैक को पकड़े रखने में हेल्प करता है एक डेफिनेट गॉज डिस्टेंस पे, वहाँ पे स्विचेस के टो पे. नेक्स्ट स्लाइड चेयर. दिस आर स्पेशल प्लेट्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर द स्टॉक एंड टोंग रेल्स. एक तरह की स्पेशल प्लेट्स होती है जो कि स्टॉक रेल्स और टोंग रेल्स के नीचे प्रोवाइडेड होती है. These are essential because tongue rails have to move outwards or away from the stock rails. On these sliding plates, the stock rails remain fixed while the tongue rails is able to slide. क्या काम करेगा फ्रेंड्स? स्टॉक रेल को पकड़े रखने का काम करेगा और टोंग रेल जो है इस पे से स्लाइड कर देगा. नेक्स्ट इज स्ट्रेचर बार. The toes of both the tongue rails are connected together by means of stretcher bar so that each tongue moves through the same distance or gap while changing the points. स्ट्रेचर बार का फंक्शन ये है फ्रेंड्स कि टोंग रेल्स के जो टो है उन्हें एक साथ बांधे रखने का काम करता है ताकि आपकी टोंग रेल्स एक साथ चल पाए. नेक्स्ट इज रॉड्स क्रैंक लीवर. दीज आर यूज टू कनेक्ट tongue of switch to the main rail or to isolate tongue from the main rail. Connection and disconnection of tongue rail to the main rail is done from the signal cabin by operating a lever. इनका फंक्शन ये है फ्रेंड्स कि स्विच की जो टंग होती है उसे मेन रेल के साथ कनेक्ट करना है या अलग करना है तो इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज दैट लॉकिंग सिस्टम. द ड्राइवर्स हैज़ नो इंस्ट्रक्शन टू नो वेदर द सिग्नल साइन इज करेक्ट और नॉट. In the locking system, tongue rail and signal operate simultaneously. जो ड्राइवर होता है उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिससे कि वो पता लगा पाए कि सिग्नल साइन करेक्ट है कि नहीं. और लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है कि टंग रेल और सिग्नल जो है वो एक के बाद एक ऑपरेट होते हैं. In this system, the position of signal cannot be changed unless the position of switch is changed. तो इस सिस्टम में फ्रेंड्स जो सिग्नल की पोजीशन है उसे हम नहीं चेंज कर सकते हैं जबकि स्विच की पोजीशन चेंज नहीं हो जाती. फॉर दिस ऑपरेशन प्लंजर बार एंड लॉक बार इज़ यूज्ड. तो इस ऑपरेशन के लिए फ्रेंड्स प्लंजर बार और लॉक बार का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ टर्न आउट. तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टर्न आउट. उसमें पहला है लेफ्ट हैंड टर्न आउट. एज यू कैन सी इन दिस फिगर फ्रेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लेफ्ट हैंड टर्न आउट. If a train from the main track is diverted to the left from the main route in the facing direction, then the diversion is known as the left hand turnout. अगर फ्रेंड एक ट्रेन जो है वो मेन ट्रैक से डाइवर्ट होती है कहाँ पे? लेफ़्ट साइड पे, मेन रूट से लेफ़्ट साइड पे किस डायरेक्शन में? फेसिंग डायरेक्शन में. तो उस डाइवर्जन को हम लोग लेफ्ट हैंड टर्नआउट कहेंगे. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स right hand turnout. If a train from the main track is diverted to the right of the main route in the facing direction, then the diversion is known as right hand turnout. अगर एक ट्रेन को फ्रेंड्स डाइवर्ट किया जाता है मेन ट्रैक से किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में मेन रूट के, जो कि फेसिंग डायरेक्शन में है, तो उसे राइट हैंड टर्नआउट कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज फेसिंग डायरेक्शन? इफ समवन स्टैंड्स at the toe of switch and looks towards the crossing, then the direction is called facing direction. अगर एक बंदा स्विच की टो की ओर खड़े रह के क्रॉसिंग की ओर देख रहा है तो उस डायरेक्शन को फेसिंग डायरेक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट इज ट्रेलिंग डायरेक्शन. इफ समवन स्टैंड्स एट द क्रॉसिंग एंड लुक्स टूवर्ड्स द स्विचेस, देन द डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रेलिंग डायरेक्शन. मतलब अगर कोई क्रॉसिंग पे खड़ा है और वो स्विचेस की ओर देख रहा है तो उस डायरेक्शन को हम ट्रेलिंग डायरेक्शन कहेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज फेसिंग पॉइंट्स ऑफ टर्नआउट्स? व्हेन ट्रेन्स पासेस ओवर द स्विचेस फर्स्ट एंड देन दे पास ओवर द क्रॉसिंग, these points are called facing points of turnouts.
जब ट्रेन पहले स्विचेस से पास होती है और उसके बाद वो क्रॉसिंग से गुजरती है तो उन पॉइंट्स को टर्नआउट्स के फेसिंग पॉइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेलिंग पॉइंट्स ऑफ टर्नआउट्स। व्हेन ट्रेन्स passes over the crossing first and then passes over the switches, these points are called trailing points of turnouts। जब ट्रेन्स फ्रेंड्स क्रॉसिंग से पहले गुजरती है और फिर स्विचेस से गुजरती है तो उन पॉइंट्स को ट्रेलिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है टर्नआउट के। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट। हैव अ ग्रेट डे and thanks for watching।